बंदगी लाए हैं जिंदगी, बंदगी यीशु की बंदगी है खुशी वो ही सच्ची खुशी। रोशनी यीशु है रोशनी, वो मार्ग है वो सत्य है, वो जीवन है सबका, वो प्यार है उद्धार है, वो सबको देगा जिंदगी forever, जिंदगी forever। आसमानी खुदा हमको आशीष दे, रूह से भर दे हमें, अपना अभिषेक दे, यीशु मसीह के नाम में है मुक्ति है शिफा, वो प्यार है उद्धार है, वो सबको देगा जिंदगी forever, जिंदगी forever। दोस्तों जिंदगी फॉरएवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही सुंदर सुबह है और हम यहाँ पर हिल सॉन्ग के सेंटर के आगे खड़े हैं और आज का जिंदगी फॉरएवर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ रीना है। रीना, कैन वी हैव यू हियर? हालेलुया। नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी फॉरएवर में आपका स्वागत है और जैसा देख रहे हैं आप, बहुत सुंदर सुबह है और आज हम यहाँ पर आए हैं, वर्शिप अटेंड करेंगे, यहाँ पर मीटिंग अटेंड करेंगे और डार्लिन से भी बात करेंगे और मेरे साथ श्रेया भी है। एज यूजुअल वी हैव श्रेया विद अस। आई थॉट यू आर इन द क्राउड। Hi, I'm so excited, Dad. Hillsongs is like my favorite gospel band, so I'm really excited. Yes, and we are all excited. हमको मालूम है कि आज बहुत सुंदर दिन होगा, बहुत सुंदर यहाँ पर मीटिंग होगी और प्रभु का आशीष मिलेगा और सबको मिलेगी जिंदगी forever. God bless you. दोस्तों जिंदगी फॉरएवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम हिल सॉन्ग चर्च में खड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। और आज हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि खुद डार्लिन हमारे साथ हैं in the Hillsong Church. Hi, darling. Hi, lovely to see you. Lovely to have you on the show. This is Zindagi Forever, and Zindagi means life. Zindagi. 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 So Zindagi. Forever. Forever. Jesus says that I have come to give you life and life in abundance. Hallelujah. John 10:10. Hallelujah. And this is Reena. This is Shreya. Yeah, I love these girls. And you know we are your huge fans. And in India, people love your music, they love your song and your anointed worship. And there are people around India who really want to know more about you. Okay. Well, I started singing when I was 3. Wow. And I think I've been paid full-time to sing since I was 10. Okay. And I got saved at 15. Then I really didn't start leading worship till my early 20s. But I've been part of singing in church since I was about 17, 18. Okay. And I don't think I'm amazing. I think God really delights in using ordinary people. That's what I think. And I think worship is inclusive. It's not exclusive. It's not for the highly talented, That's right. hugely gifted. It's every man, woman, child, every nation, every tribe, every tongue. Every Indian, every Australian. Yes. Yeah. You are definitely so talented and hallelujah. But when did you? Oh, that's you're so humble. When did you? Why did you actually think to worship Jesus? Why not something? You could be a real pop star. You could have been a really, we want to know why Jesus. Why worship only? Because Jesus came and saved me, and I want to serve him with my life. Mm-hmm. More than music, every part of my life. Mm-hmm. All the unseen, all the seen. Yeah, that's what it's the least I can do
for. When you make your songs, what is the first thing in your mind? I mean, of course, they're led by the Holy Spirit. But when you actually sit and compose and when you write the songs, what goes in your mind? How do you write your songs? I'm probably. I try not to think too much. I just try to worship. Just really open my heart. I have the Bible open my heart, and I'm often actually thinking of the congregation. I'm trying to think of the congregation on what will help them. So just for ordinary people, what will make it easy for them, what, really key words do I feel they need to say when it comes to just saying thank you and expressing their heartfelt worship to God. Not even. Do you know any Hindi song? No, but if you give me some, I'll learn some. Yeah. Okay, shall we do it right now? Okay. Zindagi forever. Awesome. Zindagi forever. 2, 3. Zindagi forever. Zindagi laye hai zindagi. Zindagi laye hai zindagi. Bandagi is worship. Bandagi यीशु की बंदगी. Bandagi, Yesu ki bandagi. Yesu is Jesus, hallelujah. Bandagi, Yesu ki bandagi. Zindagi forever. Zindagi forever. Zindagi forever. Zindagi forever. Beautiful. Zindagi Forever is not a program. It's a mission. It's a movement of God, and it's a Holy Spirit movement, and we want that India should get Zindagi Forever. Hallelujah. One message for all our Indian viewers from Darlene. I would just say to you today that no matter what's gone on in your life, in your world today, to date, Jesus is the only name. Hallelujah. It's the only name by which all man can be saved. It's very, very simple. He takes anyone, all of us, no matter what our past is, no matter what we have done. And he simply says, come. And I just encourage you to respond to the love of God. With worship, that's all that is. It's response to the love of God. And giving your heart to Christ, it's just in response to the love of God. So I encourage you, and those dreams in your heart that you all have, you just hold on to Jesus, and we will see them come to pass in Jesus' name. We love you so much. Darlene, just 2 lines of your favorite worship song that you... Anything would be Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amen. I love you. Zindagi forever. Amazing grace, how sweet the sound. मित्रों, बहुत ही सुंदर है डार्लिंग हार्बर आप देख रहे हैं, और कितनी सुंदर परमेश्वर की सृष्टि है, और इंसान ने भी उसको कितना डेवलप किया और कितना सुंदर बनाया है। और सबसे तो सुंदर है परमेश्वर का वचन, बाइबल, पवित्र शास्त्र। और जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको अपने जीवन को सुंदर बनाने की और बहुत सारी बातें पता चलती है। वाकई में यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हमारा जीवन सुंदर हो, और इसीलिए तो उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी, इसीलिए तो उन्होंने हमारे लिए इतना महान बलिदान दिया। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो उनके साथ क्या हुआ? मैथ्यू 27 वर्स 42 में अगर हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो लोग जिन्होंने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था, वो लोग जो उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, वो कहते कि इफ ही बी द किंग ऑफ इजराइल, लेट हिम नाउ कम डाउन फ्रॉम द क्रॉस एंड वी विल बिलीव हिम। वाकई में वो कहते हैं कि अगर ये राजाओं का राजा है, अगर ये इजराइल का राजा है, तो ये क्यों
क्रूस से नीचे नहीं आ जाता। अगर ये नीचे आ जाएगा तो हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। वाकई में कुछ इस तरह की आवाज़ें यीशु मसीह सुन रहे थे और कुछ इस तरह की आवाज़ें हम अपने जीवन में भी सुनते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो बहुत सारे लोग हमको बहुत कुछ साबित करने को, प्रूव करने के लिए हमको उत्तेजित करते रहते हैं और हम वाकई में हमारा जीवन कई बार कुछ चीज़ें प्रूव करने में ही निकल जाता है। अगर आप अच्छा गाते हैं तो लोग कहेंगे अरे अगर तू बहुत अच्छा गाता है तो तू ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो लोग कहते हैं अगर तो आपका इतना अच्छा बिज़नेस है तो तुम प्रूव करके दिखाओ। और लोग इसी एक कंपटीशन में लगे रहते हैं कि अपने आप को प्रूव करें कि हमारे पास अच्छी से अच्छी नौकरी हो। कोई दिखाना चाहता है कि मेरे पास अच्छे से अच्छा घर हो, कोई दिखाना चाहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वाकई में हमारा पूरा जीवन एक रेस, एक रैट रेस बन जाता है और हम कुछ ना कुछ प्रूव करना चाहते हैं। कुछ लोग ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो अच्छे हैं, कुछ लोग ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं और तुमसे अच्छी करते हैं, कुछ लोग ये भी साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं। और इसी तरह से यीशु मसीह को भी उत्तेजित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, अगर तुम इज़राइल के राजा हो तो इस बात को साबित करो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर यीशु मसीह उस क्रूस से नीचे आ भी जाते तो भी शायद वो लोग विश्वास नहीं करते, तो भी शायद वो लोग ईमान नहीं लाते, क्योंकि उनके नीचे आने से वो, अगर यीशु मसीह का अगर उनको विश्वास करना होता तो वो वैसे ही उसके ऊपर विश्वास करते, क्योंकि उसने जो बातें कही थी वो सच बातें थी। लोग उसके द्वारा किए हुए मौजज़े, चमत्कार देख रहे थे, वो सब कुछ देख रहे थे। क्रूस तो एक अंत की बात थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने हज़ारों बार जाहिर किया, हज़ारों बार इस बात को साबित किया, लेकिन वो ईमान नहीं लाना चाहते थे। वो वाकई में अंधे हो चुके थे। इसलिए तो यीशु मसीह कहते थे कि जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले। वो तो लोग कहते थे कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा क्योंकि ये देखते हैं मगर नहीं देखते, सुनते हैं मगर नहीं सुनते। और ऐसे ही इस दुनिया के अंदर हमारे साथ भी होगा। जब यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन मैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमको लोगों की बातों में नहीं आना है। आगे हम देखते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर ये क्रूस से नीचे आ जाए तो हम इस पर विश्वास करें। वाकई में अगर वो क्रूस से नीचे आ जाते, वाकई में उनके पास इतनी ताकत थी, वो फरिश्तों को बुला सकते थे, वो बहुत कुछ कर सकते थे, परमेश्वर के पुत्र हैं, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन लोग चाहते थे कि हे यीशु तू नीचे आ और तू हमसे बात कर और हमको साबित कर। ऐसे ही दुनिया में भी लोग हमको कहेंगे तुम नीचे आओ और अपने उस स्तर से, जो परमेश्वर ने हमको स्तर दिया है, जो परमेश्वर ने हमको एक जगह दी है उसके पुत्र होने की, उसके अभिषिक्त लोग होने की, वो चाहते हैं कि हम उस स्तर से नीचे उतर आएं और लोगों से उनके स्तर पर आके बात करें। शैतान यही चाहता है कि हम नीचे गिर जाएं, क्योंकि शैतान आता ही हमको गिराने। वो चाहता है कि हम लड़खड़ा जाएं, वो चाहता है कि हम फिसल जाएं और नीचे गिर जाएं, और वो हमको इस तरह की बातों के अंदर मुलविस करना चाहता है, इस तरह की बातों में हमको लपेट कर हमको हमारा स्तर नीचे गिराना चाहता है। और हम कई बार उसकी बातों में आ जाते हैं। कई बार हमसे कोई बुरी बात कहता है तो हम उसके साथ उसी तरह से बात करते हैं। कोई हमसे लड़ता है तो हम उसको उसी तरह से जवाब देते हैं। कोई हमको एक थप्पड़ मारता है तो हम उसको दूसरा थप्पड़ मारने चल पड़ते हैं। तभी यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम उसके सामने दूसरा गाल कर दो, ताकि हम उनके स्तर पे ना आए, हम उनके लेवल पर आकर उनसे बातचीत नहीं करें। यीशु मसीह ने उस क्रूस पे रह के ही साबित कर दिया कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, और हमको भी उसी स्थान को ग्रहण करना है, हमको भी उसी स्तर पर रहना है जो यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए बनाया है। मित्रों, बहुत मुश्किल है ये चलन चलना इस दुनिया में, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। वाकई में वो कहते हैं कि अगर तू अपने स्तर से नीचे आ जाए तो हम विश्वास करेंगे। अगर वो अपने स्तर से नीचे आ जाएंगे तो विश्वास करने वाली बात क्या रहेगी। फिर वो यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र की तरह उसने कहाँ पर बिहेव किया। लेकिन शैतान यही चाहता है कि हम उस दिव्यता को छोड़ दें, उस आदरणीय कार्यों को छोड़ दें, उस अच्छे और अभिषिक्त कार्यों को छोड़कर गलत कार्यों में लग जाए। और ऐसा वाकई में आजकल हम जीवन में देख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोगों के, परमेश्वर के अभिषिक्त लोग भी इस छलावे में आ रहे हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोग भी, परमेश्वर का वचन कहता है कि चुने हुए लोग भी भटक जाएंगे, और ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको इन बातों से बचना है, हमको परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पे चलना है, हमको परमेश्वर की जो अभिषेक उन्होंने हमको दिया है उसको संभाल के रखना है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये जो अभिषेक हमको मिला है, ये जो हमको नजात मिली है, जो मुक्ति मिली है, ये बहुत महंगी है। यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी है, और हमको उसका आदर करना है, हमको उसकी वैल्यू को समझना है, उसकी कीमत को समझना है, और परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पे चलना है। एन आई फॉर एन आई नहीं करना है, और टूथ फॉर अ टूथ नहीं करना है। लेकिन अगर कोई हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो हमको उसके आगे दूसरा गाल करना है।
हमको उस तरफ से नजर हटा लेनी चाहिए, हमको अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखना चाहिए और हमको कहना चाहिए, हे परमेश्वर, हमारी नजरें तो सिर्फ आपकी ओर लगी हैं, हम केवल आपकी तरफ देखना चाहते हैं, हम दुनिया की तरफ नहीं देखना चाहते। कितनी सुंदर सृष्टि है, कितना सुंदर सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है और कितना सुंदर परमेश्वर हमारे जीवन को भी बनाना चाहते हैं, लेकिन क्यों हम सब कुछ खो देना चाहते हैं? क्यों हम लड़ाई झगड़ों में पड़कर एक दूसरे के साथ मन मुटाव करके और लोगों के साथ उनकी बातों में आके और शैतान की चालाकियों को समझते हुए भी ना समझें, समझते हुए उसकी बातों में आ जाएं, तो फिर हम मूर्खी कहलाएंगे। मैं आज आपको इसी बात के लिए उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हम परमेश्वर के बताए मार्गों पर चलें और उस आनंदमय जीवन को व्यतीत करें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए डिस्टाइन किया है। हमारी एक प्रोफेटिक डेस्टिनी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए सोच के रखी है और वो योजना परमेश्वर की, उसको पूरा करने में हमारा भी हाथ होना चाहिए। आए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो महान कार्य उसने हमारे जीवन के लिए किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो महान बलिदान उसने हमारे जीवन के लिए दिया, हम सबकी मुक्ति के लिए दिया है, हम सबको अनंत जीवन दिया, हमको ज़िंदगी फॉरएवर दी है और इस ज़िंदगी फॉरएवर को हम हमेशा संभाल के रखें, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप इसको खो दें, शैतान यही चाहता है कि आप इसको लूज़ कर दें और आप फिर मृत्यु की तरफ बढ़ जाएं, आप फिर नाश की तरफ चले जाएं। चलिए हम मिल के प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, और कितनी सुंदर आपने हमारे लिए योजना बनाई और कितना सुंदर आपने अपना उदाहरण हमारे लिए बनाया प्यारे परमेश्वर। हम यही चाहते हैं परमेश्वर, आप हमें सामर्थ्य दें, हमें शक्ति दें, हमें ताकत दें कि हम आपके बताए हुए मार्गों पर चल सकें। हमारा शरीर कई बार हमको लड़ने के लिए कहेगा, कई बार हमारा शरीर हमको लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करने के लिए कहेगा, ज़बानी तौर पर, शारीरिक तौर पर हम एक दूसरे से लड़ना चाहेंगे, एक दूसरे को हम दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख करना चाहेंगे, लेकिन प्यारे परमेश्वर ऐसा आपने नहीं सिखाया। और आज प्यारे यीशु मसीह, हम आपके बताए मार्गों पर चलना चाहते हैं। आप हमें सामर्थ्य दें ताकि हम दुश्मनों को माफ़ करें, आप हमें सामर्थ्य दें कि हम विश्वास के द्वारा शैतान को हरा दें प्यारे परमेश्वर। आप हमें सामर्थ्य दें प्यारे परमेश्वर की वो अनंत प्रेम हमारे अंदर आ जाए, वो असीम प्रेम हमारे अंदर आ जाए प्यारे परमेश्वर, ताकि हम हर एक को अपने सीने से लगा के, दिल से लगा के चलें प्यारे परमेश्वर, ताकि वो यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर से एक झरने की तरह बह निकले प्यारे परमेश्वर, ताकि ये इस आतंकवाद का, इन सब लड़ाई झगड़ों का हम जवाब उन्हीं की तरीके से ना दें प्यारे परमेश्वर, लेकिन हम यीशु मसीह को अपने सामने रखते हुए क्रूस के पीछे छुपते हुए चलें, ताकि हम दुनिया को बदल दें प्यारे परमेश्वर। और यही तो आपने कहा है कि इस दुनिया के अंदर प्रेम करो एक दूसरे से, दुश्मन से भी प्रेम करो। और प्यारे परमेश्वर, यही हम करना चाहते हैं। आप हमें शक्ति दें, आप हमें सामर्थ्य दें। एक दर्शक के लिए मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर कि आज आप उनको छू लें, आज उनके जीवन को बदल दें। उनके घर में यदि लड़ाई झगड़ा है तो आप उसको मिटा दें प्यारे परमेश्वर। अगर उनके भाइयों से मन मिटाव है तो उसको भी आप प्यारे परमेश्वर दूर कर दें। यदि वो अपने कलीसिया में जाते हैं, अपने चर्च में जाते हैं, अगर प्यारे परमेश्वर वहाँ पर उनका अगर किसी के साथ मन मुटाव है या अगर लड़ाई झगड़ा है, तो खुदावंद आज आप उसको भी दूर करें प्यारे परमेश्वर, और इस दुनिया के अंदर केवल प्रेम रह जाए। और यीशु मसीह आप सच्चे खुदा हैं, इस बात को हम पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं। और यही खुशखबरी है जिसने हमको अंधकार से उजाला दिया है, मृत्यु से अमृत पिलाया है और तमस से हमको ज्योति दी है। प्यारे यीशु मसीह, आपके सुंदर नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इसको सुने और कबूल करें। आमीन। यीशु मसीह की जो जिंदा आसमान पे और वो जल्द आने वाला, बोल यीशु मसीह की। हम यहां पर कोई शो नहीं लेकर आए हैं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं लेके आए हैं, लेकिन आज हम सब मिलकर खुदावन उस पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमको इकट्ठा किया। हम उस खुदा का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमको जिंदगी फॉरएवर दी। मित्रों, आपने ये छोटा सा प्रोमो देखा, ये किसी मिनिस्ट्री का प्रोमो नहीं है, ये किसी एक विशेष व्यक्ति का प्रोमो नहीं है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो भारत में हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, ना जोर से ना ताकत से, बल्कि खुदावंद की रूह से। हालेलुया। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझको मसा किया है।
खुशखबरी दूं गरीबों कैदियों को रिहा करूं खुशखबरी दूं गरीबों को कैदियों को रिहा करूं खुशखबरी दूं गरीबों को कैदियों को रिहा मसा किया है उसने मुझको मसा किया है उसने मुझे भेजा है उसकी रूह मुझ पे सब मिलके बोलिए उसने मुझे भेजा है उसकी रूह मुझ पे acceptable in your sight, O Lord, my strength, my Redeemer. Let's worship Him together. Clap your hands, everyone. क्या बात है, हालेलुया जीसस। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले, वो बोने वाला बीज बोने चला। परमेश्वर ने कितना सुंदर आज बीज हमारे मन में बोया, हमको बताया कि किस तरह से हमको शैतान की बातों में नहीं आना। जैसे यीशु मसीह ने भी शैतान को परास्त कर दिया, उन्होंने उनको हरा दिया और उसकी बातों में नहीं आए, और क्रूस पर रहकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। हमको भी उस क्रूस पर रहना है, अपना क्रूस उठा के चलना है और दुनिया को साबित करना है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। आज डालिन से बात की, कैसा लगा आपको इंटरव्यू? आप हमें पत्र लिख के बताइए। परमेश्वर कितने सुंदर सुंदर कार्य कर रहे हैं, हम सबके जीवन को आशीष और अभिषेक से और खुशियों से और आनंद से भरना चाहते हैं, और यही
हमको इस चीज़ के अंदर हमको तत्पर रहना चाहिए और इस चीज़ में हमको बने रहना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सब पार्टनर्स का जिन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की। बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला और सब ने हमारे सत्संग के कॉन्सेप्ट को समझा, सब ने जाना कि हम क्या करें इंडिया के अंदर, और वो सब चाहते हैं कि वो हमारे साथ पार्टनरशिप करें। वो सब चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन एक एक रूह तक पहुंचे, एक एक आत्मा तक पहुंचे, ताकि किसी का भी विनाश ना हो, ताकि सबको ज़िंदगी फॉरएवर मिले, तब सबको यीशु का वो आनंद मिले और वो मुक्ति मिले जिसका प्रयोजन यीशु मसीह ने हम सब के लिए किया। दोस्तों, इस कार्यक्रम को देखते रहें, हमारे साथ संपर्क बनाए रखें। आप हमको ईमेल कर सकते हैं, आप हमको पत्र लिख सकते हैं, आप हमको इस नंबर पर आप हमको फ़ोन कर सकते हैं जो आप इस पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, और हम सब मिलके एक आनंद उत्सव बनाएं। हम सब मिलके खुशियों के साथ यीशु मसीह का पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएं, शैतान की बातों में ना आए और हमको मिलती रहे जिंदगी फॉरएवर। गॉड ब्लेस यू। बोने वाला बीज बोने चल। Fear thou not, for I am with thee. I am thy God, and I will strengthen thee. I will help thee. I will help thee. मित्रों, हमारे सत्संग में आना ना भूलें। इस जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या फिर पत्र भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे सत्संग पे। जय मसीह की।
शुक्रिया है खुदा, शुक्रिया है खुदा, शुक्रिया है खुदा। You're watching Pegham TV.